So basically, once again, good afternoon to everyone, and I'm going to just share some thoughts with all of you around success today. My company is called Hariharan School of Success Education, or HSSE as we call it. So the name itself is coined because want to educate people on how to be successful, and everybody wants to be successful in life. And I can tell you one thing, that as an entrepreneur, you are never successful. As an entrepreneur, you struggle every day. When there are days when things are not going your way, you are struggling. When things start going your way, you struggle more, because now you have to keep up with it, and you also have to fulfill certain expectations. So all are entrepreneurs here, so I respect that, and I have very huge regard for people who are in the sales function. It is never easy to be a salesperson. It requires a lot of effort. It requires a big jigger, if I might say. It requires a big heart to be a salesperson, because you have to keep your, as one of my clients once told me, if you are in sales, you are an entrepreneur, you have to keep your ego in your pocket, but not your shirt pocket. It has to be your trouser pocket, because if it is in your shirt pocket, it's very close to the heart. So you take it to heart. You take rejections and failures to your heart. But if you keep your ego in your trouser pocket, it does not affect you in any way, right? So that's the first, if I might say, you want to call it a learning, you want to call it a takeaway. The very first thing we all need to understand as an entrepreneur is ego is a very bad thing. And we all have come from some or the other position in life. So even being a homemaker is a position, and from there you transit to becoming an entrepreneur, for example. And some of us have come from corporate careers, so we held certain positions. And the only reason, let me tell you the secret, the only reason people respected us is because of our visiting card. It said something like associate vice president or vice president or general manager. So what really people speak about you behind you is what they really think about you. And what they say on your face, you have to at least dilute it by 30 to 40%, because that's what positions are all about. People respect the position. They respect the prime minister, they respect the president, they respect the cabinet minister, they respect the building secretary. It's the position. But do people respect you? That's the most important thing that we all have to earn in our lives. The position will give you some sense of some kind of a status. But what really matters at the end of the day is, do people respect you as a person? Do they connect with you? Whether you are a salesperson, whether the customer connects with you, you are part of this organization, so do you connect with the promoters? Do the promoters connect with you? Do you connect with one another as a team? It's all about establishing the right kind of connections. That's what entrepreneurship is all about. Entrepreneurship is not so much about money. Of course, it's about money. There is no business without money. There is no money without business. But the fact of the matter is, what's the larger reason as to why you became an entrepreneur? And that's what I like to begin with. I think the larger reason that you and me become an entrepreneur is not just to make money. It's to put the mission before the commission. So you see, all of us earn commissions. All of you earn commissions, and you make some money. But what's within the commission? It's the mission. So when you get up in the morning, what drives you? Is it just the commission, or it is the mission within the commission that should drive you? And I have found this, and there is a wonderful book called Sales is a Noble Profession. And in this book, there is an example of a medical representative who is very successful. And when they did a little research about understanding what makes some kind of people very successful and some kind of people not so very successful, when they asked this medical representative, what makes you successful? You must be meeting more doctors, selling more, you must be really working hard, and there must be some amazing sales technique that you might be using, for all you know. And this medical representative, and I think it's a lady, she said, no, I just believe in what I do. I just believe that the company that I represent, the medicines that the doctor prescribes, those medicines actually help people.
एंड आई फाइंड इट फैसिनेटिंग दैट आई एम अ कैटलिस्ट इन दैट प्रोसेस, कि मेरी वजह से कुछ लोगों का जिंदगी में फायदा होता है, उनका हेल्थ अच्छा होता है, उनको दवाइयाँ मिलती है, जो काम मेरी कंपनी करती है मैं उस काम से बहुत जुड़ी हुई हूँ. आई फील वेरी कनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस. So do you feel connected with what you sell? Do you feel connected to the life policy you give, or the ULIP that you sell, or to the health policy that you give? Do you feel connected to what that policy does to the customer's life after you have sold the policy to that person? And let me tell you, that feeling, that understanding that I am making a larger contribution than just earning money for myself and my family is an amazing feeling. It's a fantastic feeling. For the last 11 years, I have been getting up every morning of my life, feeling very excited that I am making a difference to people's lives through my training, through my teaching, through my training, through my coaching, through my mentoring, and through some talk or motivational session that I do. I know by the end of this session, हो सकता है मैं 5-6 चीजें आपसे शेयर करूं, आपको बहुत सारी चीजें शायद 2 दिन के बाद याद भी न रहे, लेकिन इफ यू कैन टेक अवे जस्ट दैट वन थिंग फ्रॉम दिस सेशन, मे बी जस्ट दैट वन थिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू विल टेक फ्रॉम मी, बट इफ यू कैन जस्ट टेक दैट वन थिंग फ्रॉम दिस सेशन एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर लाइफ, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर एग्जिस्टेंस. एंड आई थिंक द सक्सेस of anything in life, whether it is this session or this conference that you're doing, or the sales that you do every day, or anything that you do in your life, the success of everything does not come from what you know. It comes from how you apply what you know. So it's execution. So if you take away one thing from this session and apply it in your life, that will change the game for you. Then you can look at what is the next thing that I need to apply. तो जब हम लोग स्कूल गए थे और हमको एक बात बताई गई थी कि नॉलेज इज पावर, ये बहुत ही गलत चीज है. मतलब आप सोच रहे स्कूल वाले गलत पढ़ाते, गलत नहीं पढ़ाते, इनकम्प्लीट पढ़ाते हैं. उन्होंने हमको बताया कि नॉलेज इज पावर, लेकिन बड़ा होने के बाद, खास करके जब मैं एंटरप्रेन्योर बना, तो मुझे एक बात समझ में आई कि नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर. If you apply that knowledge, then it becomes power. मुझे मेडिटेशन आता है, लेकिन क्या फायदा अगर मैं करूंगा नहीं. मुझे मालूम है रोज सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग जाना चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे अपना तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं करता हूं क्या? सो नोइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग. द सेकेंड एस्पेक्ट दैट आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, कि जिंदगी में खुश रहने का प्रैक्टिस कीजिएगा. Learn to be happy. And in today's world, that is one of the biggest challenges that we have in life. There's so much negativity all around us, and there are some genuine problems. I completely understand that. But to be happy, you don't need any reason. To be successful, you need many reasons. You need to have somebody to buy, you should know how to sell, somebody should give you the commission, somebody should give you the recognition, the environment should be in your favor, the company should be in your favor, the product should be good, your people at your home should allow you to work in peace. There are so many factors that make you successful. But to be happy, you don't need any factors. You can just be happy. You need to practice happiness. This is something I learned over a period of time, that happiness is a very natural phenomena, but to bring it into your life very naturally, you need to practice it. मतलब रोज खुश रहने का प्रैक्टिस करना पड़ता है. जैसे बैटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ता है, बॉलिंग का प्रैक्टिस करना पड़ता है, सेल्स कॉल का प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको खुश रहने का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. और किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है. जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है. जिंदगी को जियो इस अंदाज में, जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है. सो हमें अपने लाइफ में एक रोल मॉडल बनना है. और हम रोल मॉडल कैसे बनते हैं? रोल मॉडल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से रोल मॉडल नहीं बनता. आप स्कैम करके भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो क्या आप रोल मॉडल बन गए? आपने पैसा लूटा, कहीं भाग गए, तो क्या ये आप रोल मॉडल बन गए?
तो सक्सेस एक अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एवोल्यूशन। एक पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपके वैल्यूज ऐसे होने चाहिए, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हो। आपका कस्टमर आपसे इंटरैक्ट करे तो वो इंस्पायर हो, आपके कलीग्स आपसे इंटरैक्ट करे तो आपसे वो इंस्पिरेशन ले, आपका परिवार आपसे इंटरैक्ट करे तो आप इंस्पायर हो। मुझे याद है एक दोस्त ने एक बार, मैं एक सेशन ले रहा था कहीं पर, तो उन्होंने किसी से पूछा, ऐसा एक क्राउड था, तो उन्होंने पूछा कि अभिषेक बच्चन को अगर पूछा जाए कि आप किसके जैसे बनना चाहते हो तो वो क्या कहेगा? उसने बोला, मैं अपने बाप अमिताभ बच्चन, अपने पिताजी अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहूंगा। फिर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चों से पूछोगे तो कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, वो भी अमिताभ बच्चन का ही नाम लेता, आपका नाम क्यों नहीं लेता? राइट? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर चिल्ड्रन शुड फील इंस्पायर्ड बाय अस। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। एंड ऑफ द डे, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, your brothers, sisters, your closest friends, your children, they should value what you do. They should salute you for what you are doing. How can this happen? This can happen only if you love your work. अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे, रोज कॉलिंग करना बड़ा पेनफुल होता है, मैं समझता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, ये भी बड़ा पेनफुल है। 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप किसी के अंदर कितना जोश भर सकते हो, ये कोशिश है, लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए। मैं भी सेल्स करता हूं, आप भी सेल्स करते हैं, मुझे भी 10 जन से रोज बात करनी पड़ती है, भाई मेरा प्रोग्राम अटेंड करेगा। 9 जन बोलता है नहीं करना है, किसी को सूरत पसंद नहीं है, किसी को सीरत पसंद नहीं है, किसी ने कंपनी का नाम नहीं सुना है, किसी ने बोला कि तेरे जैसे गली गली मोटिवेशनल स्पीकर घूमते हैं, तेरे को इतना पैसा क्यों दो, ऐसा भी बोलते हैं। उसके बाद भी वो 11वां कॉल करने का आपके अंदर जिगर होना चाहिए, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? 130 करोड़ की आबादी, और बढ़ता जा रहा है। सो कमी नहीं है प्रोस्पेक्ट्स की। और मैं तो लोगों को बोलता हूं, और 1000 ट्रेनर रोज पैदा हो जाए तो भी कम पड़ेंगे, और 1000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स रोज पैदा हो जाए तो भी कम पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज सो मच नीड एंड देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी। बट I have found that the difference between successful people and the ones who are not very successful is that the successful people love their work. For them, सबसे बड़ी दौलत उनका काम करने का जो मौका मिलता है, वही उनके लिए बहुत बड़ी दौलत है। वो नहीं सोचते कि अच्छा मैं काम करूंगा तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो भी वो अपने काम से मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। खूबसूरत शेर है, और एक शेर सुनाऊंगा, आपकी इजाजत हो तो। नहीं भी हो तो भी सुनाने का सोचा ही है मैंने। थैंक यू। तो फैज अहमद फैज साहब बहुत बड़े शायर, बहुत ही बड़े शायर हैं, थे रादर, लेकिन वो ये लोग कभी मरते नहीं, हमारी जिंदगी में जीवित रहते ही हैं। फैज अहमद फैज साहब बोलते हैं, उन्होंने एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, मैंने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है हमारे काम के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा। शब्दों का खेल देखिए, कितना खूबसूरत बात है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा, या काम से आशिकी की, या काम से आशिकी किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, जिंदगी में बहुत इश्क हो गया और अभी थोड़ा काम से आशिकी करते हैं, काम से इश्क करते हैं। क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूं कि जब आप लोगों से ज्यादा प्यार करते हो तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जब आप अपने काम से ज्यादा प्यार करते हो तो पैसे बनते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू मेक मनी इन लाइफ, देन यू टू लव योर वर्क, यू टू लव पीपल अ लिटिल लेस and less number of people. If you love too many people, it is very expensive. अभी तो लॉकडाउन है, हम कॉफी शॉप में जा नहीं रहे, लेकिन प्यार मोहब्बत में मिलते हैं 800 रुपया डाउन। जैसे ही बिल आता है मोहब्बत खत्म हो जाती है, बोलता है ये क्या है यार और उसके ऊपर से भूख भी नहीं मरती, और वो कॉफी पियो, एसिडिटी अलग। मतलब आपने एक्चुअली आने जाने का 500 रुपया, कॉफी का 800 रुपया, फिर उसके वजह से डॉक्टर का और 3000 रुपया। मतलब एवरी सिंगल कॉफी शॉप विजिट इज 5000 रुपीज।
ओके, तो लॉकडाउन कितनी खूबसूरत चीज है, कोई बुलाता भी नहीं, अपन जाते भी नहीं, अपन भी नहीं बुलाते, अपन किधर जाते नहीं, सब गूगल मीट पे, जूम पे सब काम हो रहा है, और घर में बैठे बैठे हम कॉफी पी रहे, खर्चा भी नहीं हो रहा है, राइट। सो हर मुश्किल दौर का एक अलग एडवांटेज भी होता है, तो हम एडवांटेज देखने की कोशिश करें। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि डोंट फियर फेलियर। हम लोग सेल्स में हैं तो हम रोज फेल होंगे, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस आज तक पैदा नहीं हुआ जहां पर आपने फोन किया और किसी ने हां बोल दिया, आज तक पैदा नहीं हुआ। कुछ ना के बाद ही हां आता है, वो हर सेल्स हो, हर बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो। और मुझे लगता है जो फास्टेस्ट क्लोजिंग बिजनेस है वो है इडली वड़ा सांबार चटनी बेचना। ये फास्टेस्ट क्लोजिंग बिजनेस है, उसमें ना ज्यादा लंबा चौड़ा सेल्स प्रोसेस नहीं बताना पड़ता, पर्पस, प्रोसेस, पे ऑफ, क्लोजिंग स्किल, रेफरल स्किल, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, कुछ लफड़ा नहीं है उसमें। सीधा बोलने का, वो मैं इडली वड़ा बेच रहा हूं, 5 जन लाइन लग जाएगी। हमारा बिजनेस कैसा है? पुश बिजनेस, धक्का मारो मारो मारो। इडली वड़ा कैसा है? पुल बिजनेस, दुकान खोलो लोग आ जाते हैं। वहां पर भी सब कैन आई हैव समबडी सम बैकग्राउंड नॉइस? या थैंक यू। सो लेकिन ये इडली वड़ा सांबर चटनी बिजनेस में भी सभी लोग एक ही जगह से इडली वड़ा चटनी नहीं खाते हैं, उनके पास भी ऑप्शंस है, उसको भी रिजेक्शन सहना पड़ता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड यू आस्क एनी बिग बिजनेसमैन, you ask any big successful person, you ask any entrepreneur who is successful, you ask any employee who is successful, they will tell you the one quality that successful people have from others is their ability to not quit, is their ability to not give up, it is the ability to be persistent। मतलब अगर आपका पर्पस क्लियर है, हमको यही करना है और हमको इसी में आगे बढ़ना है, तो फिर ये मेडिटेशन है, ये रोज यही करना है, रोज सुबह उठना है, यही काम करना है, रोज सुबह रात को यही काम करना है, ये अपने बुक्स को चेक करना है, आज क्या हुआ, सो जाना है, सुबह उठना है, काम पे लगना है, लगातार बार बार सालों साल यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। आज लता मंगेशकर जी और आशा भोसले को 75 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर। आशा भोसले जी, she is almost 90. I think she just celebrated her 88th birthday. She still sings, she still does stage shows, और वो बोर नहीं हुई, वो बोर नहीं हुई। हम लोग बोलेंगे अरे उनको पैसा मिल रहा है, बोर कैसे होंगे, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए सिंगिंग किया ही नहीं, वो इतना पैशन से करते हैं, पैसा बन जाता है। और क्या उनके लाइफ में तकलीफें नहीं आई होंगी? एक तो लता मंगेशकर का बहन होना, इतनी बड़ी हस्ती का बहन पैदा होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक सुपरस्टार एक्टर के बेटे या बेटी पैदा होते, बड़ा प्रॉब्लम है। ऋषि कपूर से पूछा गया आप तो राज कपूर के बेटे हो, सक्सेसफुल बनना कोई बड़ी बात नहीं, बोलते हैं नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग आपको फिर राज कपूर से कंपेयर करते, बोलते हैं राज कपूर जैसा तो काम नहीं करता यार, बोलता है इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। सो आशा भोसले रीइन्वेंटेड हरसेल्फ, and how many years of struggle, how many years of patience, how many years of passionate work, and she gets it. So it's one of the most important things. Along with your persistence, you should have a lot of passion. मैं जब भी सेशन लेता हूं, आधे घंटे का हो, पूरा दिन का हो, 2 लाख का, 2 घंटे का हो, 2 लाख का हो, 20,000 का हो या फ्री हो, सारा जो पैसे का नेगोशिएशन होता है सेशन के पहले होता है। कभी वो फ्री होता है, कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हो तो आपका पैशन और आप कितना कमा रहे हो उसका बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लाख रुपया भी कम है, कहीं कहीं पे 1000 रुपया भी ज्यादा है, इट इज अ वेरी रिलेटिव थिंग, राइट? बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स द बिगेस्ट वेल्थ, दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस। और तकलीफ है तो आएंगी बॉस, सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि हम पैदा हो गए, ये बड़ा तकलीफ है। अब इससे बड़ा तकलीफ कुछ नहीं है। अब पैदा हो गए, अब तकलीफ आने वाला है। पैदा होने का मतलब ही है इसको तकलीफ से डालने का है, इसके लिए तो पैदा हुआ, मजे करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है।
मजा वो तकलीफ में आपको ढूंढना है। तो एक और शेर सुनाऊंगा जो बड़ा मेरा फेवरेट है। आप मुझे 3 बजे भी रात को चिमटी मार के उठाएंगे, बोलेगा हरी ये बोल, तो मैं बोल सकता हूं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। तो अभी आप आ गए हैं, इस ग्रुप में आ गए हैं, सही आए गलत आए क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन एटीट्यूड सही होगा तो आप जो प्लेटफॉर्म पे आए हैं उसी प्लेटफॉर्म से आपकी तरक्की भी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप प्लेटफॉर्म को भी तरक्की कराओ, सिर्फ अपना तरक्की के बारे में मत सोचो। जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी आगे बढ़ाओ। जितना प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, दुनिया में टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन टैलेंट होकर प्लेटफॉर्म नहीं मिलना है बहुत बुरी बात है। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज इसलिए भी बने क्योंकि वो भारत के लिए खेले। अगर वो केन्या में पैदा होते तो तेंदुलकर नहीं बनते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू मे बी एवरेज, बट इफ यू हैव अ ग्रेट प्लेटफॉर्म यू विल बिकम ग्रेट। You may be great, but if you are in a very average place, then you will become very average. So हर चीज हमारी क्षमता से नहीं चलती है, बहुत कुछ हमारे माहौल से भी चलता है, right? So never give up. Last 2 things I want to share with you is control the controllable. लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए रिजल्ट्स के पीछे ज्यादा मत भागो। जो काम आपको करना है, जिसके वजह से रिजल्ट मिलेगा, उस पर ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल, द रिजल्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? सो आई जस्ट सॉ somebody sold 11 policies, so you might have called maybe 50 people, maybe 25 people, maybe 30 people. What was in your control? Not getting the 11. What was in your control is to call those 30 people, 50 people. And that's the only thing you can control in life. You can control your response to your problems. You cannot control the problems, because not all problems are created by us. अभी कोविड हमने तो पैदा नहीं किया ना, वो आ गया। अभी आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो ये आपके हाथ में। कोविड भागेगा कि नहीं आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं और आप डॉक्टर नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं, हम वैक्सीन नहीं बना सकते। हम हल्दी वाला दूध जरूर पी सकते हैं तो पियो, गर्म पानी पी सकते हैं पियो, मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं तो मास्क पहन के बाहर निकलो, जरूरत नहीं है तो घर के बाहर मत निकलो, सैनिटाइजेशन करो। तो देयर आर स्टिल 20 थिंग्स व्हिच आर इन माय कंट्रोल। सो एम आई कंट्रोलिंग दोस कंट्रोलेबल फैक्टर्स इज समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, राइट? सो last thing is, if you want to earn more and more money and you want to continuously keep earning money, are you happy with the money you made right now? So would you like to write a letter to the company, I am totally satisfied, अब और 1 रुपया और नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है। You want to continuously keep earning. The richest man in this world also wants to continuously keep earning, right? There is only one secret to that, and that is learning, continuous learning. Learning about the business, learning about people, learning about products, learning about the environment, learning leadership skills, learning communication, learning coaching, because learning customer handling, all these things are extremely important for all of us to learn in our life. And the more you invest in your own development, the more rich you will become, both internally as well as financially. So we are all in the business of abundance, but abundance is not only money. Abundance of character, abundance of happiness, abundance of great relationships. Learn how to build good relationships. And I would also urge all of you to invest some money every month on LinkedIn. Have a good profile on LinkedIn. Be active on LinkedIn.
you invest about close to 3,000 rupees every month on LinkedIn. You get access to their learning courses. I completed some 25-30 courses in this lockdown. They're small courses, 15 minutes courses, 30 minutes courses. There are 1 hour courses, there are 2 hour courses. And they're fascinating. At just the press of a button, you get such amazing content by some amazing speakers. कुछ नहीं, हमने वो 30 मॉड्यूल में से अगर मैं 10 चीज भी समझा और मैं 5 चीज भी इंप्लीमेंट किया मेरे लाइफ में, तो आई विल डू वेल फॉर माई सेल्फ, राइट? सो आई जस्ट wanted to share some thoughts with all of you that put the mission before the commission. Love your work, don't fear failure, be persistent, don't give up, control the controllable, always be a learner, always be happy in life. Success does not create happiness, happiness creates success. If you happily do the calls, you happily do your work, that itself is success, and the success that will come will only add to your happiness. आखिर में एक और शेर राहत इंदौरी साहब का बहुत खूबसूरत शेर है, 2 लाइन. आई होप आई कैन रिकलेक्ट इट करेक्टली. आई जस्ट शेयर इट विथ यू. रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है. खलल इज ऑब्स्ट्रक्शन. रोज तारों की नुमाइश में, stars, they have a challenge in displaying themselves every day. Why? रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में ही निकलता है. तारों की नुमाइश में खलल क्यों पड़ता है? क्योंकि चांद रोज रात को ही निकलता है. और क्यों रात को ही निकलता है? क्योंकि चांद पागल है. तो आप और मैं जो बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोग तो हो ही नहीं सकते. हम तो पागल हैं. जहां पर लोग आराम से बैठे हैं, हम जाके ऐसी बातें कर देते, परेशान हो जाते बेचारे. तभी तो बिकता है. तो हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को आबाद करना. आवर आइडिया इज नॉट टू create distress for people. Our idea is to create happiness for people, prosperity for people, help them with their financial planning. I help them with their learning plan. You are helping them with their financial plan, right? So रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में ही निकलता है. थोड़ा बहुत पागलपन जिंदगी में जरूरी होता है, वैसा वाला पागलपन नहीं. हमारे काम के लिए जुनून, हमारे काम के लिए जोश. And in English it is called as mad. Mad means make a difference to people's lives, right? Make a difference to people's lives. तो वैसा वाला पागल बनना है, right? और जो हटके काम करता है ना लाइफ में, मजा भी उसी को जिंदगी में आता है, right? So thank you very much, ladies and gentlemen. It was a real pleasure talking to all of you, and I hope that I could add some value to your life. God bless you, and thank you very much.